आज हम क्लास 9th के यूनिट 1 फिक्शन का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये रिटन है सुधा मूर्ति। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines, and post. सुधा मूर्ति स्टार्टिंग में बताती है कि जब वो 12 ईयर्स की थी, वो विलेज में रहती थी नॉर्थ कर्नाटका के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। उस टाइम में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए जो मॉर्निंग पेपर्स थे वो भी उन्हें आफ्टरनून में मिलते थे, और जो वीकली मैगजीन्स होती थी वो भी वन डे लेट आती थी। जो उस विलेज के सारे लोग थे वो उस बस का ईगरली बहुत ज़्यादा वेट करते थे, जिसमें सारे पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट आते थे। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. Unfortunately, for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. फिर वो बताती हैं कि उस टाइम में एक बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में, त्रिवेणी। वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल राइटर थी। उनका जो स्टाइल था लिखने का वो बहुत ज़्यादा इजी था पढ़ने के लिए और बहुत कन्विंसिंग था। जो उनकी स्टोरीज़ थी वो डील करती थी जो नॉर्मल पीपल की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में। पर वो कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत जल्दी डेथ हो गई उनकी, बहुत जल्दी मर गई वो। और आज भी फिर वो बताती हैं कि आज भी 40 साल बाद उनकी स्टोरीज़ और नोवेल्स को अप्रिशिएट किया जाता है। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। फिर वो बताती हैं कि उनकी एक नोवेल थी काशी यात्रे, वो एक सीरियल के रूप में आती थी वीकली कन्नड़ मैगजीन कर्मवीर में। वो एक स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी की और उसकी अर्डेंट मतलब उसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी काशी या फिर वाराणसी जाके। मोस्टली हिंदूज़ ये मानते हैं कि काशी में लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना एक बहुत बड़ी पुण्य की बात है। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love but there is no money for the wedding. In the end, the old lady gives all her saving without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. फिर जो ओल्ड लेडी थी वो भी ये बात मानती थी कि वहाँ पे अल्टीमेट पुण्य होता है लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से, तो वो वहाँ पे जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है और पैसे इकट्ठे करती है। और इस स्टोरी में एक और यंग ऑर्फन गर्ल थी, उसके पास उसकी वेडिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर जो ओल्ड लेडी थी वो अपने सारे पैसे उस यंग गर्ल को दे देती हैं और फिर वो कहती हैं कि जो इस ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस है वो लॉर्ड विश्वेश्वरा में काशी में उनकी वर्शिप करने से भी बहुत बड़ी है। My grandmother Krishtaka never went to school, so she could not read. Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. During that time she forgot all her work and listened with the greatest concentration. Later she could repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, so she identified herself with the novel's protagonist. More than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. फिर जो सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर थी कृष्णका, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो फिर वो डिपेंड थी सुधा मूर्ति पे कि वो जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वो उससे वो स्टोरी रीड करके सुनाए। हर वेडनेसडे को जब वो स्टोरी आती थी, तो जब वो मैगज़ीन आती थी जिसमें वो स्टोरी लिखी थी, तो फिर जो सुधा मूर्ति थी वो अपनी ग्रैंड मदर को नेक्स्ट एपिसोड रीड करके सुनाती थी।
जब वो सुधा मूर्ति स्टोरी को रीड कर रही होती थी, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो अपने सारे कंसंट्रेशन के साथ वो स्टोरी को सुनती थी और अपना सारा काम भूल जाती थी। फिर बाद में वो जो ग्रैंड मदर थी वो सारी स्टोरी को टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पूरे हार्ट से, पूरी फीलिंग के साथ किसी को भी सुना सकती थी। जो वो उसकी ग्रैंडमदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी, तो फिर वो जो नॉवल में प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर या मेन लीडर, उनके साथ अपनी स्टोरी को कनेक्ट करके समझती थी। किसी किसी से भी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या हुआ होगा। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. She would discuss the latest episode with her friends. At the time, I never understood why there was so much of debate about the story. फिर जब वो स्टोरी को सुन लेती थी अच्छे से कि काशी यात्रा में नेक्स्ट क्या हुआ, फिर वो टेंपल के कोर्टयार्ड में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ गैदर करके, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उस स्टोरी के बारे में चर्चा करते थे, डिबेट्स करते थे कि उस स्टोरी में नेक्स्ट क्या होगा। उसी जगह पर वो जो ऑथर थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी। वे वो कभी नहीं समझ पाती थी कि उस स्टोरी के लिए इतनी डिबेट्स क्यों होती थी। Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days, but ended up staying there for a week. Savoring मतलब बहुत ज़्यादा enjoy करना। एक बार जो सुधा मूर्ति थी वो अपने कज़न्स के साथ एक वेडिंग में चली जाती हैं उन अपने नेबरिंग विलेज में। उस टाइम में वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे खुद को। वो वहाँ पे अच्छे से खाते थे, खेलते रहते थे बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि सारे एल्डर्स बिजी थे। वो गए तो थी वहाँ पे 1-2 दिन के लिए, पर वो वहाँ पर पूरे 1 वीक रुक जाती है। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult of situation. What had happened? I was worried. जब वो अपने विलेज वापस आती हैं, उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो रो रही थी, वो टीयर्स में थी। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए नहीं देखा था, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही हो। वो बहुत टेंस्ड हो जाती है। वो सोचती है कि क्या हुआ होगा। आवा, इज़ एवरीथिंग फाइन? आर यू ऑल राइट? वो कहती हैं कि आवा, क्या आप ठीक हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आई यूज़ टू कॉल हर आवा, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। वो अपनी ग्रैंड मदर को आवा कहती थी, जिसका मतलब मदर होता है नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नड़ बोली जाती है उसमें। She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What is the matter?" जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो नोड करती है, मतलब येस की डायरेक्शन अपने हेड को मूव करती है, और कुछ रिप्लाई नहीं देती। वो समझ नहीं पा रही थी इस बारे में, और फिर वो इस बात को भूल जाती है। फिर जब रात हो गई थी, डिनर करके वो ओपन टेरेस पे सो रही थी, तब वो समर नाइट थी और फुल मून था। जब उनकी आवा आती है, जब उनकी ग्रैंड मदर आती है और उनके साइड में आके बैठ जाती है और अपने अफेक्शनेट हैंड से उसके फोरहेड को टच करती हैं, उसके लव और अफेक्शन के हैंड से उनके फोरहेड को टच करती है। वो समझ जाती हैं, वो सुधा मूर्ति समझ जाती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर को उससे कुछ बात करनी है। सुधा मूर्ति फिर उनसे पूछती है कि क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर? When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man. He got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. All the time, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren study well.
फिर वो जो ग्रैंड मदर थी वो क्यों सैड थी वो बताती हैं, मतलब वो अपनी स्टोरी बताती हैं कि जब वो एक यंग गर्ल थी उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया था, मतलब उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी और उनकी केयर करने के लिए, केयर और उन्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं था। जो उनके फादर थे, जो उनके पापा थे, बहुत बिजी मैन थे, बहुत बिजी पर्सन थे। उन्होंने फिर से शादी कर ली उनके फादर ने। फिर उस टाइम में जो लोग थे वो कभी भी गर्ल्स के लिए एजुकेशन एसेंशियल नहीं समझते थे, ज़रूरी नहीं समझते थे। तो फिर जो ग्रैंड मदर थी वो भी कभी स्कूल नहीं गई। उनकी एक यंग एज में मैरिज हो जाती है और चिल्ड्रंस। फिर वो बहुत बिज़ी रहने लगती है। फिर बाद में उनके जब ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो बड़ी खुश होती थी अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को खाना खिलाने में और उनके लिए खाना बनाने में। कभी कभी वो इस बात के लिए रिग्रेट ज़रूर करती थी कि वो कभी स्कूल क्यों नहीं गई, इसलिए वो श्योर करती थी, इसलिए वो कहती थी कि मेरे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ें। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. One thing I knew, I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. I looked at her face. It was unhappy, and her eyes were filled with tears. She was a good looking lady who was almost always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो सुधा मूर्ति थी उन्हें वो समझ नहीं पा रही थी कि उनकी 62-year-old ग्रैंड मदर एक 12-year-old बच्ची को अपनी स्टोरी क्यों सुना रही है, वो भी आधी रात को। पर वो एक चीज़ जानती थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर से इमेंसली, मतलब बिना किसी हद के प्यार करती थी, इसलिए वो सुन रही थी। और वो सोचती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर का कोई तो रीज़न ज़रूर होगा कि वो ये बात उनसे कर रही है। जब सुधा मूर्ति ने अपनी ग्रैंड मदर के फेस की तरफ देखा तो वो अनहैप्पी था और उनकी जो आइज़ थी वो पूरी भरी हुई थी टीयर्स के साथ, आंसुओं के साथ। वो एक गुड लुकिंग लेडी थी जो मोस्टली हमेशा हंसती रहती थी और आज तक वो सुधा मूर्ति कभी भूल नहीं पाई है उस वर्ड एक्सप्रेशन को जो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के फेस पे देखा था। फिर जो सुधा मूर्ति थी वो लीन करती है आगे और अपनी ग्रैंड मदर का हैंड पकड़ लेती है और कहती हैं, आवा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। फिर वो कहती हैं कि आवा, रो मत, क्या कुछ हुआ है, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ में मदद कर सकती हूँ क्या। यस, आई नीड योर हेल्प. You know, when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra and could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages wishing to understand that what was written. But I knew it was not possible. If only I was educated enough. फिर वो कहती हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें पता है। वो बताती हैं कि तुम्हें पता है जब तुम दूर थी, जब तुम वेडिंग में गई थी, तब भी करमवीर आई थी एज़ यूजुअल की तरह। मैंने उस मैगज़ीन को खोला, मैंने पिक्चर्स देखी जो काशी यात्रा स्टोरी के लिए, मतलब कंपनी जो उस बारे में है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा है। उन्होंने कई बार अपनी आइज़ को रब किया, जो पेजेस थे उनके ऊपर से अपने हैंड्स को, उनके ऊपर से अपने हाथों को फेरा, उनके ऊपर से हाथ फेरे, फिर भी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्हें पता था कि ये पॉसिबल तो है नहीं, अगर ये पॉसिबल हो सकता था अगर वो एजुकेटेड होती। I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt so very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? फिर वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, मुझे लगा कि तुम बहुत जल्दी आ जाओगी और ये मेरे लिए पढ़ोगी। मैंने ये भी सोचा, फिर वो ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने ये भी सोचा कि मैं गांव में किसी के पास जाके उन्हें बोलती हूँ कि वो मेरे लिए पढ़ दे, पर मुझे बड़ा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी ये बोलने में। वो जो ग्रैंड मदर थी वो अपने आप को बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस सोच रही थी। फिर वो कहती हैं कि हम एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, कि हमारे पास बहुत पैसा है,
पर इस पैसे का क्या यूज़ जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हो सकती। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, आवा कंटिन्यूड। वो सुधा मूर्ति बच्ची थी, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या बोलना है। और फिर वो जो उनकी आवा थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, फिर वो बोलना फिर से कंटिन्यू करती है। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I'll work very hard. I'll keep Saraswati Puja day during Dasara as deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. फिर वो कहती हैं कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी कल से ही। मैं बहुत हार्ड मेहनत करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी और दशहरा के दिन मैं डेडलाइन रखूँगी जिस दिन मैं वो नोवेल खुद से पढ़ सकूँ, और उस दिन मैं सरस्वती पूजा भी रखूँगी। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, वो ग्रैंड मदर सुधा मूर्ति को कहती हैं। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। जो सुधा मूर्ति थी वो उनकी अपनी ग्रैंड मदर के फेस पे डिटर्मिनेशन देख लेती हैं, उनकी लगन तो देख लेती हैं, पर फिर भी वो हंसती हैं। आवा, at this age of 62 you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you have so much work in the kitchen. फिर वो कहती हैं कि आवा, तुम 62 ईयर्स की हो और तुम्हें अब अल्फ़ाबेट सीखने हैं। तुम्हारे सारे बाल ग्रे हो चुके हैं, हाथों पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं और चश्मा पहनती हो, और किचन में तो बहुत काम है। Childishly I made fun of the old lady, but she just smiled. मैंने बच्चों की तरह, फिर वो कहती हैं, मैंने बच्चों की तरह उनका बहुत मजाक उड़ाया, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I'll work harder than anybody, but I'll do it. For learning, there is no age bar. फिर वो ग्रैंड मदर कहती है कि अगर तुम किसी अच्छी चीज़ के लिए डिटरमाइंड हो, अगर तुम कोई एक अच्छी चीज़ पूरी लगन के साथ करना चाहते हो, तो फिर किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करूँगी, किसी भी इंसान से मैं ज़्यादा हार्ड मेहनत करूँगी ये करने के लिए, और वैसे भी लर्निंग के लिए तो कोई एज बार नहीं होती। ऐसे वो ग्रैंड मदर सुधा मूर्ति को कहती है। The next day onward I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. फिर नेक्स्ट डे उन्होंने अपना ट्यूशन देना स्टार्ट किया अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी आवा को। फिर वो कहती हैं कि आवा एक बहुत वंडरफुल स्टूडेंट थी, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वो इतना होमवर्क करती थी, इतना होमवर्क करती थी, वो बहुत अमेजिंग था। वो रीड करती थी, फिर रिपीट, फिर लिखती थी और उसे रिसाइट करती थी। फिर वो सुधा मूर्ति कहती हैं कि मैं उनकी एक लौती टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट। फिर वो समझती हैं, लिटिल डिड आई नो, फिर वो थोड़ा थोड़ा समझने लगती है कि एक दिन वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी। The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatra, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gifted me a frog. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. फिर जब दशहरा फेस्टिवल आ जाता है एज यूजुअली, तो फिर वो जो सुधा मूर्ति थी वो सीक्रेटली बिना किसी को बताए उनके लिए काशी यात्रा ले आती है। उस टाइम पे काशी यात्रा अब नोवेल की तरह पब्लिश होने लग गया था। फिर जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उन्हें बुलाती हैं पूजा प्लेस में और उन्हें एक स्टूल पर बिठा के उनको एक फ्रॉक गिफ्ट करती है। और फिर उन्होंने एक बहुत अनयूजुअल चीज़ करी जो सुधा मूर्ति कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने बेंट करके, वो झुककर सुधा मूर्ति के पैर छूती हैं। I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We considered that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. फिर वो कहती हैं, सुधा मूर्ति अपने ग्रैंड मदर को कहती हैं कि बड़े कभी भी बच्चों के पैर नहीं छूते, यंग लोगों के पैर नहीं छूते। वो पैर छूते हैं, हम पैर छूते हैं गॉड के, एल्डर्स के और टीचर्स के। इसे एक मार्क माना जाता है रिस्पेक्ट के लिए,
ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, पर आज इसका उल्टा हो गया था और जो बिल्कुल सही नहीं था, ऐसे सुधा मूर्ति कहती है। शी सेड, फिर वो जो ग्रैंड आवा कहती है, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, a teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It's my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? फिर सुधा मूर्ति कहती हैं कि वो जो ग्रैंड मदर थी वो कहती हैं, कृष्णका कहती हैं कि मैं तो अपनी टीचर के पैर ही तो छू रही हूँ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, जिसने मुझे इतना अच्छे से इतने प्यार से पढ़ाया कि अब मैं किसी भी नोवेल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, वो कहती हैं कि अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। और ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, स्क्रिप्चर्स मतलब होली टेक्स्ट में भी लिखा है कि जो टीचर है उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिना उनके जेंडर और एज के देखें। आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। शी ओपनड इट एंड रीड द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली। फिर जो सुधा मूर्ति थी वो अपनी ग्रैंड मदर को नमस्कार करती हैं और फिर उनके भी पैर छूती हैं और अपना गिफ्ट देती हैं अपने फर्स्ट स्टूडेंट को। वो बुक जो लाई थी वो उनके लिए नोवेल काशी यात्रे वो उन्हें गिफ्ट में देती है। फिर जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उसे पढ़ती है, वो उसका टाइटल पढ़ती है काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली, और वो पब्लिशर का नेम भी साथ में जल्दी से पढ़ लेती हैं। सुधा मूर्ति फिर समझ चुकी थी, आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। फिर सुधा मूर्ति समझ जाती हैं कि जो उसका स्टूडेंट था वो फ्लाइंग कलर से पास हो गया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 का, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। थैंक यू।